welcome to e-learning. We are learning chapter 8 agriculture sector of standard 12th economics, and we have completed 9 lectures in it. And today we are going to start about the 10th lecture. Now we are learning about the technical measures. We have already completed institutional measures. We are learning about the measures to increase the agriculture productivity. In that, institutional measure is completed. Technological measure we have started. In that, 3 points we have covered till now. So remaining 3 points and the overview for the total technological measures, and followed by the other methods we are going to learn here. So let's quickly start our lecture 10. So we are going to learn about measures to increase agriculture productivity, and this is the part 4 of it. And again we are going to learn about the modern agriculture. So these 2 points which have been remaining we are going to complete today, and we are going to end the chapter here. Now in modern agriculture we are going to learn about only the one topic, that is green revolution. Apart from that, 3 points have been removed for your examination. So very first one, that is use of machines. Now use of machines, earlier we have seen improved seed, then after we have seen about the chemical based fertilizers, use of chemical based fertilizers, where we find that our Indian farmers were using original seeds, organic seeds, and it has been replaced by the hybrid seeds. So why hybrid seeds? Because it helps us to grow more production again very speedily. Second, we have seen about the different we can say nothing about but fertilizers will help us to improve, helps the farmer to improve their land fertility, because many times because of so many different crops growing, or because of few years only the crop fertility or the land fertility has been gone down. And to increase the land fertility, or to get crop maximum nutrition, they have to compulsory use fertilizers. So for that, chemical based fertilizers which are being made, which help the hybrid seed, because hybrid seed is also a medicine, it is a mixing of the scientific invention, different science और different methods से वो लोग अपने seeds बनाते, इसी वजह से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर लाए. देन आफ्टर वी हैव सीन इरिगेशन फैसिलिटी, बिकॉज पहले के टाइम पे क्या होता था, अनसर्टेनिटी ऑफ रेन्स. तो इसकी वजह से फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जिस टाइम पे वो लोग क्रॉप रखते हैं, क्रॉप ग्रो करने के लिए, उस टाइम पे जो पानी चाहिए वो पानी नहीं मिलता, वो रेन वाटर के ऊपर डिपेंडेंट थे. सो दे डिपेंडेंट ऑन, सो मैनी टाइम्स रेन डज नॉट फॉल ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम. सो उसके लिए उस टाइम तक उन लोग को क्रॉप्स बचाने के लिए पानी चाहिए. तो पानी कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट हैज सेटअप इरिगेशन फैसिलिटी, एंड वहाँ से उन लोग को पानी मिलता है. सो फ्रॉम डिफरेंट डैम्स, डिफरेंट रिवर्स, वहाँ से उन लोग को पानी मिलेगा. पानी की वजह से दे कैन ग्रो, दे कैन गिव दिस क्रॉप वाटर, एंड उसकी वजह से वो क्रॉप धीरे धीरे जहाँ तक बारिश ना गिरे तहाँ तक वो ग्रो अच्छे से ग्रो कर पाए. सो दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर बी नीडेड. तो बहुत सारे विलेजेस में ये इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी. बहुत सारे विलेजेस के अंदर ये रिवर से लेके यहाँ तक का कोई टनल या कोई स्मॉल स्ट्रीम्स नहीं फ्लो हो रहा था जिससे वो फ़ायदा हो. सो ये सब चीज़ें बनाने के लिए गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इरिगेशन फैसिलिटी, एंड दिस 3 पॉइंट्स कंप्लीटेड, एंड वी आर गोइंग टू लर्न टुडे विद द 4th पॉइंट, दैट इज़ यूज़ ऑफ मशीन्स. तो ये 3 पॉइंट में हमने देखा कि ये कैसे हेल्प कर रहा है. 4th पॉइंट क्या बोल रहा है कि मशीन से अगर करोगे तो आपका एफर्ट्स कम लगेगा और काम जल्दी होगा. सो ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स में क्या था, बुलक कार्ट्स था. बुलक कार्ट्स पे हम कर रहे थे, अभी उसकी जगह रिप्लेस होकर ट्रैक्टर्स आ गए. तो ट्रैक्टर्स विल हेल्प अस टू डू वेरी स्पीडीली देन दी बुलक कार्ट्स. बुलक कार्ट्स में बुल को धक्के मारते मारते उसको करते करते वो स्लोली काम होगा पूरे अंदर. लेकिन ट्रैक्टर के अंदर जस्ट अप्लाई अ मशीन ऑन इट, फ्यूल डालो और चालू करो, चालू हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट वी फाइंड. नॉट ओनली ट्रैक्टर बट ट्रेलर्स, देयर आर थ्रेशर्स, इलेक्ट्रिक पम्प्स, ऑयल इंजिन्स, पेस्टिसाइड स्प्रिंकल पम्प्स. तो ये सारे डिफरेंट टेक्निक्स जिससे हम अच्छे से हमारे क्रॉप्स को मेंटेन कर सके, ग्रो कर सके, अपने लैंड को अच्छे से फर्टाइल रखने के लिए, अच्छे से क्रॉप ग्रो करने के लिए जैसे डिफरेंट टेक्सचर्स चाहिए वैसे टेक्सचर्स हम ये ट्रैक्टर, ट्रेलर या थ्रेशर से बना सकें. सो ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग विल हेल्प the farmer to do the particular farming work very easily. एग्रीकल्चर सेक्टर में ये हेल्प करेगा. देन आफ्टर पेस्टिसाइड्स. नाउ पेस्टिसाइड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. पेस्टिसाइड्स को क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे 25% ऑफ क्रॉप जो बिगड़ जाते थे वो पूरे पेस्टिसाइड्स नहीं होने की वजह, बिकॉज ऑफ पेस्ट.
जो कीड़े मकोड़े उसको खा जाते, तो 25% ऑफ द क्रॉप्स आर बीन spoiled because of them. Then after you find that machines, these machines will help the farmer to gain more time for more एग्रीकल्चर फार्मिंग, इंक्रीजेस कर देंगे. तो एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप को इंक्रीज करना है, मतलब दे कैन ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर. अगर ये इसके हिसाब से चले तो एक क्रॉप की जगह दूसरे क्रॉप, तो उन लोग का इनकम भी बढ़ेगा. लाइक 6 मंथ्स के लिए होता है, कोई क्रॉप्स 4 मंथ्स के लिए होता है, तो दे कैन ग्रो 4 मंथ के लिए 3 क्रॉप्स, या 6 मंथ वाले क्रॉप्स वो लोग ऐसे ग्रो कर सकते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन विल दे कैन यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड टाइम के हिसाब से वो ग्रो कर पाएंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट पेस्टिसाइड्स. नाउ जैसे मैंने बोला पेस्टिसाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पेस्ट मतलब कीटाणु, छोटे छोटे जो बग्स रहते हैं, ये सब चीज़ जो रहते हैं, तो वो दे फीड ऑन दिस ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन लीव्स एंड द वेजिटेबल्स. सो व्हेन वी ट्राई टू ग्रो दिस पर्टिकुलर क्रॉप्स ऑफ वेजिटेबल्स, तो उसके अंदर ज़्यादा स्पॉइल कौन करता है? ये पेस्ट करते. तो 25% ऑफ द प्रोडक्शन तो ये स्पॉइल कर देते. तो उससे बचने के लिए पेस्टिसाइड्स डालते, उससे बचने के लिए पेस्टिसाइड्स है. तो पहले इंडियन फार्मर्स ऐसा कुछ नहीं करते थे, और जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर 20 to 25% क्रॉप पूरा बिगड़ जाता था, और जो बचा हुआ था वो फार्मर्स को बेचना पड़ता था, उससे पैसे उन लोगों को कम मिलते थे. लेकिन अभी ये पूरे जो फॉरेन टेक्निक्स हैं, उससे उन लोग ने देखा कि पेस्टिसाइड्स आर बीन यूज, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स आर बीन यूज, दे आर यूजिंग हाइब्रिड सीड्स. सो हियर ऑल्सो यू फाइंड दैट पेस्टिसाइड्स केम, पेस्टिसाइड्स यूज़ करना चालू कर, जिससे इंसेक्ट से हम बचा सके, क्रॉप को बचा सके डिफरेंट डिजीज़ होने से, डिफरेंट वी कैन से पॉइजनस इंसेक्ट रहते तो पॉइजन भी डालते. तो इससे कुछ भी ना हो, इसके लिए पेस्टिसाइड्स हम डालते हैं. सो दिस हैज़ बीन डन हियर. Then after soil testing, the most important is that when you try to grow the crop into the land is fertile or not, we have to check. So every year or every after one crop farming, you have to check whether the soil is been good or not. So soil testing has been done, or we can say new एक land खरीदा और उसके अंदर हमको क्रॉप ग्रो करना है, तो उतनी फर्टिलिटी है कि नहीं. So to cultivate that particular crop, we require to test the soil of that particular land, and for that soil testing is been done. पहले कोई soil testing नहीं करता, ऐसे ही grow कर देते, और हमको पता नहीं है वहाँ पे ये minerals, ये क्रॉप्स के रिलेटेड ये मिनरल्स नहीं है, तो हम कैसे ग्रो कर पाए. सो टू नो दैट पर्टिकुलर थिंग, सॉइल टेस्टिंग इज बिन डन. सो वी कैन नो ऑल थिंग्स कि उन लोग का कौन सा क्लाइमेट, कौन से क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं वो पर्टिकुलर लैंड के अंदर, कितने मिनरल्स है उसके अंदर, क्या मिनरल्स नहीं है, तो उसके लिए हम कौन से बेस्ड फर्टिलाइजर यूज़ करें. सो ऑल दिस डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स इन द सॉइल कैन बी नोन बाय अस बाय हेल्प ऑफ सॉइल टेस्टिंग. क्लियर. सो दिस हेल्प्स दैट कि अगर सॉइल में या लैंड के अंदर कुछ कमी है, तो हम वो आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र ला सकें, जिससे हमारा एग्रीकल्चर फेलियर ना हो. सो फर्स्ट वी हैव सीन improved seed in the previous lecture. We have seen about the different, we can say, chemical fertilizers, irrigation facilities. Then after we have started with the we can say use of different machines, pesticides and soil testing. तो ये 6 पॉइंट हमको याद रखने, which can come for 3 mark questions. Remember that ये पूरा टेक्निकल मेजर्स 3 मार्क्स के अंदर आ सकता है. It can be asked in a different way, but you have to write this particular as technological measures. Again, ये soil testing can come for 1 mark questions. Remember, soil testing, this particular topic is have seen many a times is coming for 1 mark question. So remember that soil testing is most popular for cultivation, which help the scientists or the farmers to check whether the fertility is there or not, which give us information about the deficiency of elements. Directly last point लिख दो कि भाई it gives us information of deficiency of elements in the soil, and we can remove that deficiency and use different types of fertilizers to gain the fertility of the land. तो अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो, or else I will give you the answer for this also. So this type of questions comes in your examination. Now moving to, we have completed institutional measures, technological measures. तो ये 2 हमने complete कर ली. अभी तीसरा है other. Now in other measures, just it is been talking about the educating the farmers, poor farmers, if they want to get to know all these things, तो उन लोग को ये education देना पड़ेगा कि improve seeds कैसे होते,
न्यू मशीन्स कैसे यूज़ किया जाता है, न्यू पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, ये सब यूज़ करने से क्या क्या फ़ायदा है. सो दे हैव टू गेन नॉलेज अबाउट द न्यू टाइप्स ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इवन न्यू टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस हुई. तो उससे क्या होगा कि फार्मर्स का बिलीव बढ़ेगा. बिकॉज अर्लियर फार्मर्स वर वी कैन से पिसिमिस्ट थे, फेटलिस्ट थे, जो लोग कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे थे. अगर एग्रीकल्चर फेलियर हो गया तो भी भगवान का नाम लेके भाई यही हुआ, यही है. इवन सोसाइटी ऑल्सो डज नॉट, सोसाइटी ऑल्सो गिव देम दिस इज बिकॉज ऑफ सो एंड सो, यू हैव डन सर्टन थिंग बैड इन योर पास्ट, दैट्स वाई. लेकिन ये नहीं है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ फार्मर वेयर दे नीड टू नो वॉट हैज़ मेड द फेलियर फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर. तो पेस्टिसाइड्स की वजह से 25% क्रॉप फेलियर हो जाता था. रेन की वजह से अगर टाइम टू टाइम वाटर नहीं मिलता तो इरिगेशन फैसिलिटी के लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी की वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर फेलियर, नहीं तो कम क्रॉप्स ग्रो होते थे, नहीं तो अंडर डेवलप ग्रो होते थे. देन वी कैन से बिकॉज ऑफ वी कैन से केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलिटी कम होने की वजह से भी क्रॉप्स के अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिशन रह जाता था. तो ये सब चीज़ें हम अलग अलग चीज़ें ये फार्मर्स को पता होनी चाहिए. सो दैट नॉलेज इज़ टू बी शेयर. सो फॉर दैट डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टेड. अगेन अलाइड एक्टिविटीज़, अगर ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर फार्मिंग करो, अलाइड एक्टिविटीज़ कर सकते हो. कैटल रेयरिंग के अंदर, पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर, फूड प्रोसेसिंग के अंदर, जंगल्स के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर. तो ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हो जिसके अंदर आपको अलग से पैसा मिल सकता है. So all these different measures you have to take and you get to know how to increase the productivity. So not only crop or food crops or vegetable crops growing, but also these things are necessary. Like cattle rearing के अंदर आपको milk मिलेगा, cattle rearing के अंदर आपको wool मिलेगा. You find that pottery farming के अंदर eggs and chickens are being produced. Different from this particular milk you can make different types of we can say cheese, paneer, curd or any other things. So we find that this particular dairy farming and everything gives you different more and more money also. So this is what the knowledge should be known to the farmer. So जिससे हेल्प हो सके. लास्टली इससे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं. तो इफ़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विच आर डिपेंडेंट ऑन रूरल सेक्टर, रूरल फार्मर्स जिसके अंदर ये लोग मिल्क देंगे, ये लोग एग्स देंगे, ये लोग डिफरेंट थिंग्स जो प्रोवाइड करेंगे एलाइड एक्टिविटीज़ से, तो उससे ये इंडस्ट्रीज चलेगी. और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विल मेक सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड इट विल हैंड ओवर टू द लार्ज इंडस्ट्रीज. सो ऐसे करते करते ये पूरा बैकबोन बन जाता है. So if this agriculture sector is been improved, we find that our overall development for industrial sector, पहले small scale sector increase होगा, then after industrial sector and then after large scale national income हमारा बढ़ जाएगा. So this is what we can say we find improvement not only in agriculture sector but in different allied activities also, which we should be done. तो ये पूरा जो हम belief system, जो superstitious system है, वो पूरा निकाल के नॉलेज एजुकेटेड फार्मर्स चाहिए. आई होप यू हैव बीन अंडरस्टूड अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन. इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, अदर मेजर्स के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं आता. तो यही चीज़ है. लास्टली द लास्ट टॉपिक विच इज़ बिन लेफ्ट दैट इज़ मॉडर्न एग्रीकल्चर. तो मॉडर्न एग्रीकल्चर कैसे करें, इसके अंदर क्या हो. सी मॉडर्न एग्रीकल्चर टॉक्स अबाउट द यूज़ ऑफ डिफरेंट मशीन्स, जो हमने अभी टेक्नोलॉजिकल मेजर्स में देखा. सो यूज़ ऑफ डिफरेंट मशीन्स. और ट्रेडिशनल वे में हम कैसे करते थे भाई, ऑर्गेनिक मैन्यूर, सीड है, सिंपल प्लॉ है, पुलर कार्ड्स है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेशंस, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से ही हम पूरा हार्वेस्टिंग करते. तो ये सब चीज़ें निकाल के मशीन से लेके आओ, जल्दी से काम करो, जल्दी से काम हो जाएगा. सो दिस इज़ वेयर यू फाइंड दैट यू कैन इन लेस ऑफ टाइम मोर ऑफ वर्क इज़ बीन डन. सो 1966 की बात करें, मॉडर्न एग्रीकल्चर हैज स्टार्टेड इन इंडिया. मीन्स वी हैव फोकस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, बट स्टिल 1966 के अंदर भी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए सोचा था. 66 के अंदर मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स लेके आए, जैसे हाइब्रिड सीड, यस आई टोल्ड यू हाइब्रिड सीड, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, different new machines for the agriculture, irrigation facility. So all this knowledge and everything we gain and we started doing modern agriculture sector. Okay, and it is also known as what, green revolution. Due to use of this modern inputs, technologies, we can say hybrid seeds, chemical fertilization, our agriculture production has increased. तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, उसको एक रिवोल्यूशन बना दिया और उसको बोलेंगे हम ग्रीन रिवोल्यूशन, बिकॉज इट हैज़ डन अ गुड इम्पैक्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर. तो एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रीनरी के हिसाब से उसको ग्रीन रिवोल्यूशन बोल दिया. क्लियर.
So use of modern inputs in agriculture production increases extensively. This counted as a revolution and the revolution was agriculture. रेवोल्यूशन किसके अंदर है? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर. इसकी वजह से हम उसको बोलेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन. क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी फाइंड दैट मॉडर्न एग्रीकल्चर के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया. और ग्रीन रेवोल्यूशन का शॉर्ट नोट आता है. दे आस्क शॉर्ट नोट फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन, तो 2 मार्क्स के लिए नहीं तो 3 मार्क्स के लिए आता ही है. सिंपल पॉइंट्स यू हैव टू मेक. इट स्टार्टेड फ्रॉम 1960-61 और यू कैन राइट डाउन मॉडर्न एग्रीकल्चर 1966. लेकिन एक पायलट प्रोजेक्ट बना था 1960-61 के अंदर. सो 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो हुआ था. रिमेंबर, सी इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. न्यू टेक्नोलॉजीज स्टार्टेड इन द ईयर 1960-61 विद द 7 डिस्ट्रिक्ट्स एंड इट इज़ नोन एज पायलट प्रोजेक्ट. फर्स्ट 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोग ने एक पायलट प्रोजेक्ट चला, एक स्मॉल प्रोजेक्ट चला. अगर वो वहाँ पे सक्सेसफुल होता है तो पूरी दूसरी जगह पे हम बिग सिटीज़ के अंदर, बिग रूरल एरियाज़ के अंदर ये करेंगे. सो इट वॉज इनिशियली नोन एज IADP, that is Intense Agriculture District Program. We have focused on district to district programs, and in that we started using different modern machines, hybrid seeds, different chemical based fertilizers, pesticides, okay, different instrumental tools which help them. तो ये सब चीज़ें की वजह से अगर ये 7 उस टाइम पे उन लोग ने 7 सिटीज़ पे अप्लाई किया, वो सक्सेसफुल, इस वजह से उन लोग ने होल नेशन के ऊपर अप्लाइड कर दिया. सो दिस इज़ वाई वी फाइंड दैट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन केम एंड दिस इज़ हाउ ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड. सो मेन थिंग इज़ द मोस्ट यूज ऑफ हाइब्रिड सीड, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज HYVP, हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम. इन दैट देयर वॉज यूज ऑफ डिफरेंट हाइब्रिड सीड्स एंड इसके वजह से उसको ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया. बिकॉज स्पीडीली ग्रोथ, मॉडर्न टेक्निक से अच्छे से ज़्यादा इजीली स्पीडीली ग्रोथ करते थे. हाइब्रिड सीड्स को कम पानी में भी, लेस वाटर से भी वो अच्छे से ग्रो कर पाते. वेर इज द ओरिजिनल और द ऑर्गेनिक क्रॉप्स इट रिक्वायर मोर ऑफ वाटर एंड फॉर मोर ऑफ वाटर दे हैव टू डिपेंड अपॉन द रेन. बिकॉज इरीगेशन सेक्टर से भी इतना पानी हेक्टर्स ऑफ लैंड में उस टाइम पे नहीं पहुँचता था. So this is what we find that high yielding variety programs or variety seeds have been developed and it is also known as green revolution. Again एक मार्क के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई HYVP का फुल फॉर्म बताइए. गिव द डिफरेंट नेम्स फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन. इट इज़ एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम, और यू कैन से प्रोग्राम ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर एंड वाटर टेक्नोलॉजी. ग्रीन रेवोल्यूशन का दूसरा नाम क्या है? इट इज़ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम. दूसरा नाम और भी है, दैट इज़ प्रोग्राम ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर एंड वाटर टेक्नोलॉजी. अगर एक पायलट प्रोजेक्ट की बात करें तो पायलट प्रोजेक्ट जो बना था कौन से ईयर में? 1960-61. कितने सिटीज़ में? 7 सिटीज़ और 7 डिस्ट्रिक्ट्स. इट इज़ नोन एज IADP, इंटेंस एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. क्लियर? तो ये पूरे ग्रीन रेवोल्यूशन इतने सिर्फ 3 और 4 पॉइंट्स के अंदर यू हैव गेटिंग 4 मार्क्स डिफरेंटली. अगर ये कोई भी चीज़ MCQ में आ सकता है कि कौन से ईयर, कौन से डिस्ट्रिक्ट, पायलट प्रोजेक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर था? 7 डिस्ट्रिक्ट. कौन से ईयर में था? 1960-61 इनिशियली स्टार्टेड. आफ्टर दैट उसका नाम क्या था? IADP, दैट इज़ इंटेंस एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. व्हाट आर द मेन थिंग? दैट इज़ डिफरेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड सीड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल मशीन्स, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स लिख सकते हो. HYVP का फुल फॉर्म क्या है? हाई यील्डिंग वेराइटीज़ प्रोग्राम. और एग्रीकल्चर का दूसरा नाम क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन का दूसरा नाम क्या है? मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम और प्रोग्राम्स ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर एंड वाटर टेक्नोलॉजी. तो ये पूरा चीज़ आप 3 मार्क्स से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स के शॉर्ट नोट में आ सकता है. यू हैव टू राइट, और एल्स इट कैन आस्क फॉर MCQ ऑल्सो. Many times I have seen this green revolution only meaning is coming, you have to write maximum which you can write. क्लियर? कि ऐसा नहीं कि भाई ये 1 मार्क में नहीं लिख सकते, लिख दो भाई, तुम लोग को ज़्यादा आइडिया है तो ज़्यादा लिख दो, बट सी द टाइम एंड राइट. क्लियर? सो आई हैव completed your chapter. There are 3 topics which has been there which is not there in your syllabus, that is multiple cropping, crop rotation. तो मल्टीपल क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन जो चीज़ है उसके अंदर क्या कि मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करते थे. कि अगर फॉर एग्जांपल सिंपल आइडिया यू जस्ट टेक कि इफ़ देर इज़ अ शुगर केन, तो शुगर केन के बीच में जो थोड़ी बहुत गैप है तो उसके अंदर दूसरा कुछ चीज़ ग्रो कर देंगे. नहीं तो इफ़ इट इज़ बिग ट्रीज लाइक चीकू फार्मिंग इज़ देयर, चीकू वाड़ीज़ है, मैंगो वाड़ीज़ है, तो उसके अंदर ट्रीज टू ट्रीज देर इज़ अ सो मच डिस्टेंस. तो इन बिटवीन दे ट्राई टू ग्रो सम ऑफ द स्मॉल क्रॉप्स
and they try to cover that particular area. So ऐसा भी वो लोग करते थे. Crop rotation means they not only every year same सिर्फ sugarcane ही grow करो. After sugarcane they try to go with rice. After rice they can again grow with different types of some vegetables. वापस दूसरे, तो उससे क्या आती है, फर्टिलिटी बढ़ती रहती है, फर्टिलिटी विल रोटेट एंड दिस विल गेन सम ऑफ द न्यूट्रिशंस टू द लैंड ऑल्सो एंड फर्टिलिटी विल बी स्टेबल. अगर एक ही चीज़ बार बार ग्रो करोगे तो वो पूरा न्यूट्रिशन एक ही क्रॉप के अंदर चला जाएगा और 5 साल के बाद वो लैंड इट विल बिकम नॉट, इट इज़ नॉट ऑफ यूज़, तो एग्रीकल्चर फार्मिंग लैंड नहीं रहेगा. सो फॉर दैट यू हैव टू गो विथ क्रॉप रोटेशन. क्लियर. सो दिस आर सम ऑफ द टेक्निक्स विच आर बीन यूज, लेकिन वो आपको अभी नहीं पूछ रहे. इट इज़ बिन reduced from you, but still I have given you an idea. If you still have doubt, you can just call or message me on my number. So we have completed chapter 8 agriculture sector in detail 10 lectures. Clear. So if you find any doubt, you can just call or message me on my number. Again, from tomorrow I'm just revising this chapter again. Clear.